خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق جامعہ مسجد عثمانیہ گوہد پور سیالکوٹ میں پیر سید اعزاز بدر محی الدین کی زیر صدارت اور ممبر علماء بورڈ پاکستان سنی تحریک قاری مبارک علی قادری کے زیر نگرانی مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کے عرس مبارک کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کے عرس مبارک کے موقع پر معروف نعت خواں ثنا خواں قاری حبیب اللہ چشتی، قاری کرامت علی چشتی اور دیگر نے اس موقع پر اپنی محبت کے پھول نچھاور کیے، شرکاء کے دلوں کو منور کیا، جبکہ معروف نعت خواں محمد نواز چشتی، پیر سید عباس علی شاہ، عادل رضا اطاری، قاری عاشق حسین انجم، علی رضا اطاری نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر قاری علامہ رضوان المدنی، پیر سید اعزاز بدر محی الدین، قاری محمد یعقوب، محمد ابوبکر قادری، علامہ خضر حیات رضوی، علامہ ثاقب رضا کریمی، حافظ محمد شاہد کٹھانہ، علامہ محمد احسان مدنی، چودھری محمد اسماعیل، حافظ محمود عالم، الحاج عبدالرشید چچی، مطلوب صدیقی اور ملک عامر اقبال نے شرکت کی، جبکہ قاری علامہ رضوان المدنی نے خصوصی خطاب کیا اور انہوں نے امام احمد رضا بریلوی کے علمی ادبی شخصیت پر خصوصی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اپنے ایمان افروز خطاب سے حاضرین کے دلوں کو منور کیا۔ عرس مبارک کے اختتام پر علامہ خوشی محمد خورشید نے عرس کے لیے خصوصی دعا کی۔ کرتا رہا، آپ کا حسن بیان کرتا رہا، سرساپا قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول۔ جس انداز سے بھی پیش فرمایا وہ کریم سب کی غلطی قبول فرمائے، قاری صاحب نے تراجات کرائے، مولا کریم کی فضل و برکات کو۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق ضلعی پولیس سربراہ عرفان اللہ خان کی ہدایت پر ضلع بھر میں انسداد دہشت گردی مہم غزالی اسکول اینڈ کالج کٹالنگ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول اور کالجز میں سیمینار کا مقصد طلبہ کو منشیات کے نقصانات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ کرنا ہے۔ کٹالنگ ڈی ایس پی سیمینار میں سرکل گلشید خان انچارج نارکوٹکس، این ای ٹی ایس ایچ او ایڈیگیشن ٹیم کٹالنگ ریاض خان اور اسکول پرنسپل تاج ملوک خان کے علاوہ طلبہ و طالبات کے کثیر تعداد نے سیمینار میں حصہ لیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پولیس افسران نے کہا کہ منشیات کا استعمال ایک قبیح فعل ہے، منشیات تباہی کے سوا اور کچھ نہیں، اس لیے خود کو اپنے اور دوستوں کو منشیات بالخصوص آئس سے دور رکھیں۔ مردان پولیس کی جانب سے منشیات اور آئس کے حوالے سے خصوصی آگاہی مہم کا مقصد منشیات کے نقصانات اور اس سے بچاؤ کے بارے میں اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کو آگاہ کرنا ہے۔ اساتذہ کرام کو ہدایت دیتے ہوئے پولیس افسران نے کہا کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار طلبہ کو منشیات سے آگاہی دیا کریں، کیونکہ طلبہ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق طاہر کوچ 89 بس سروس، سپر اوان اور تمام کمپنیوں کی بسوں نے بہاولپور اندرون شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم اور خوف و ہراس پیدا کیا ہوا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ طاہر کوچ 89 بس سروس، سپر اوان اور تمام کمپنیوں کی بسوں نے بہاولپور اندرون شہر میں خوف و ہراس پیدا کیا ہوا ہے۔ غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے بچے اور بچیوں کو اسکول اور کالج جانے کے لیے ہیوی ٹریفک کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اسکول ٹائم پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ٹیچرز کی ڈانٹ کھانی پڑتی ہے۔ پریشر ہارن اور اوور سپیڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ روز کا معمول بن چکے ہیں۔ ڈرائیور حضرات کی غنڈہ گردی ہر دھرمی عروج پر، جس کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ انتظامیہ نے سست روی اور خاموشی اختیار کر لی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، کمشنر بہاولپور اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بہاولپور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ بسوں کو اندرون شہر سے گزرنے پر مکمل طور پر پابندی عائد کی جائے، قانونی کارروائی کی جائے تاکہ شہر کا سکون بحال ہو سکے۔ سکونی کی
بے سکونی کی کیفیت ختم ہو۔ اور ادھر ممبران امن کمیٹی اور علماء کی وفد کی DIG آپریشن سے ملاقات، محرم الحرام اور چہلم امام حسین علیہ السلام کے بہترین انتظامات پر خراج تحسین۔ وفد نے DIG آپریشن افضال کوثر کو امن ایوارڈ بھی پیش کیا۔ وفد کی قیادت میں صدر شیعہ علماء کونسل لاہور ڈویژن قاسم علی قاسمی نے کی۔ وفد میں صدر امن کمیٹی لاہور چودھری محمد ارشد گجر شریک، چیئرمین کل مسالک مشائخ بورڈ مفتی عاشق حسین کی شرکت، رہنما شیعہ علماء کونسل حافظ قاسم رضا نقوی شریک، صدر PTI مذہبی امور ونگ علامہ اصغر عارف چشتی شریک، انچارج حیدریہ اسکاٹس جعفر علی شاہ دیگر شریک۔ اس موقع پر DIG افضال کوثر کا کہنا تھا کہ پاکستان ہم سب کا ہے، اسی ترقی اور امن و امان سے ہی ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ افضال کوثر نے وفد کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ آئندہ بھی تعاون جاری رکھنے کی اپیل ہے۔ اس موقع پر قاسم علی قاسمی کا کہنا تھا کہ امن و امان کے لیے کردار ہماری اخلاقی آئینی شرعی ذمہ داری ہے، وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم یہ ذمہ داری ہمیشہ پوری کریں گے۔ پھول نگر میں ایسی قصور ایکسچینج سرکل میاں محمد امین کی ہدایت پر SDO لیسکو مزمل حسین کا اپنی ٹیم، چیئرمین مین ہائیڈرو سب ڈویژن مشتاق بھٹی کے ہمراہ آدی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 50 سے زائد بجلی چور رنگے ہاتھوں بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، جبکہ متعدد کو لاکھوں روپے کی ڈائریکشن بل ڈال دیے گئے۔ اہل علاقے کا لیسکو کو زبردست خراج تحسین۔ SE قصور ایکسچینج سرکل میاں محمد امین کی ہدایت پر SDO سب ڈویژن مزمل حسین، چیئرمین لیسکو ہائیڈرو مشتاق بھٹی اپنی ٹیم کے ہمراہ میاں شہباز وغیرہ نے پھول نگر سب ڈویژن میں آدی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 50 سے زائد بجلی چوروں کو ڈائریکٹ مین تار سے کنڈے لگاتے ہوئے پکڑ لیا، جبکہ دوسری جانب کئی افراد کو لاکھوں روپے ڈیڈکشن بل ڈال دیے گئے۔ سابق جماعت اسلامی کے سابق امیر حافظ نذیر ایڈوکیٹ نے چیئرمین مشتاق بھٹی کی ٹیم کو سراہا اور کہا کہ لیسکو واپڈا اگر اسی طرح کام کرے تو یقیناً بجلی چوروں میں کمی ہوگی۔ لاکھوں روپے کی بجلی ڈال کر لیسکو نے محکمے کا فائدہ کیا۔ جگ آباد میں وزیر اعلیٰ سندھ کی آمد، برسات متاثرین سے ٹینٹ سٹی میں ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے۔ اس جگہ صوبائی صلاح کار میر اعجاز حسین چکرانی، MA گھڑی خیرو میر ممتاز حسین چکرانی، ڈپٹی کمشنر جگ آباد محمد یوسف شیخ، مختار کار غلام عباس، صدائیو DHO عبدالغفار رند اور دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما موجود تھے، جس میں جگ آباد بایو پاس کے قریب سندھ حکومت کی جانب سے قائم کردہ سٹی کیمپ کا دورہ کیا، غریب بے سہارا لوگوں برسات متاثرین سے ملاقات کی، طبی امداد کیمپ کا دورہ بھی کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، مزید جانتے ہیں خالد منجو کی اس رپورٹ میں۔ بھکر سے عوام الناس کے مسائل حقیقی بنیادوں پر بروقت حل کیے جائیں گے۔ عوامی مسائل سے آگاہی کے لیے ڈویژن بھر میں منعقدہ کھلی کچہریوں میں شرکت کر رہے ہیں اور مسائل کے فوری حل کے لیے موقع پر موجود افسران کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ بات کمشنر سرگودا ڈویژن مریم خان نے دورہ بھکر کے موقع پر DC آفس میں منعقدہ کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل موقع پر حل کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کی عوام دوست اوپن ڈور پالیسی کے ذریعے عوامی شکایات کا بروقت ازالہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کی اوپن ڈور پالیسی دیگر اضلاع کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن مریم خان نے کہا کہ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے منعقد کی جانے والی کھلی کچہریوں کو بامقصد بنانے کے لیے درخواست دہندہ کا باقاعدہ طور پر موبائل نمبرز لیا جاتا ہے تاکہ ان کی پیش کردہ درخواست پر عمل درآمد بارے ان سے دریافت کیا جا سکے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن مریم خان نے کہا کہ حکومت پنجاب کی عوام دوست پالیسیوں کے ثمرات سے عوام الناس کو بھرپور مستفید کیا جائے گا۔ ڈویژن بھر میں پبلک سروس ڈیلیوری سسٹم کو بھرپور انداز میں فعال کر کے لوگوں کو بھرپور ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ کھلی کچہری میں عوام الناس کی جانب سے پیش کردہ مسائل کا تعلق میونسپل سروسز، ریونیو، ایجوکیشن، شہر میں ٹریفک نظام کی بحالی اور پارکس کی تعزین و آرائش اور سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے حوالے سے تھا۔ کمشنر سرگودا ڈویژن مریم خان نے ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کو ہدایت جاری کی کہ پیش کردہ بنیادی مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے خصوصی میکانزم تیار کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ تو لگا دیے جاتے ہیں مگر ایک ہفتہ نہیں چلتے، اس کے بعد وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ اسے لگانے کی زحمت نہیں ہوتی۔ اسی بات اگر میں کروں، آپ ہمارے ہاں بہت اچھا بس اسٹینڈ ہے، آپ اس کو چیک کریں، وہاں سہولیات نہیں ہیں، وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ وہ ویران کھنڈر کی طرح آپ کو لگے گا جا کے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں گیس کے اوپر جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہیں اس پہ پابندی ہے، مگر یہاں پھر بھی وہ چل رہی ہے اور کسی بھی وقت حادثے کا بھی باعث ہوگی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پہ گوشت اور جو دکانیں ہیں ان کے اوپر جالی وغیرہ نہیں ہے، اگر وہاں جالی وغیرہ لگا دی جائے تو لوگوں کی انسانی صحت کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ یہاں پہ 2 بڑے سکول ہیں، گرلز کا سکول، ان کے آگے اگر آپ چیک کروائیں تو پٹھانوں کی ریڑیاں جو باہر افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی مس ہیپ ہو جائے
तो उसके भी कौन जिम्मेदारी देगा। इसी तरह मैं आपको ये भी अर्ज़ करता रहूँगा, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के हवाले से तो सबके सामने बातें कर रहा हूँ, दरख्वास्त आपको नहीं दे रहा, तो उसमें ये भी है कि मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे पार्क जो हैं, आप देखिए पार्कों की हालात वो भी बहुत बुरी है। वहाँ पे हर रोज़ नई ईंटें भी लगा दी जाती हैं, सारा कुछ, लेकिन ना बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम है, ना कोई अच्छा माहौल है, जिसकी वजह से लोग जाके आप एक जनरल बात करें, मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप कोई स्पेसिफिक दरख्वास्त दें, मैडम, 4 पॉइंट्स तो मैंने नोट कर लिए हैं ताकि हम कोई काम भी कर सकें। ठीक मैडम, मेरा वो मसाइल है ना जो जनरली है हमें दरपेश है, तो काइंडली एक कोई दरख्वास्त दे दीजिए जिसमें 2-3, ताकि हम उस पर करके आपको उसको बता सकें इंशाल्लाह। मैडम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारा कर दीजिए। मीडिया में हम हाईलाइट भी करते रहते हैं इस वजह से। तो उसमें इंशाल्लाह आप हमारी रहनुमाई करेंगी तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बहुत तानियावाला से ताहिर आवान की रिपोर्ट के मुताबिक तानियावाला के इलाका झामरा में 1857 की जंग आज़ादी के अजीम हीरो राय अहमद खान खरल शहीद की बरसी मनाई जा रही है। बरसी के मौके पर पाकिस्तान भर से आए खरल और दीगर बरादरियों की जानिब से दरबार पर चादरपोशी और फातिहा खानी का सिलसिला जारी रहा। दरबार पर बरसी के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तानेवाला के इलाका झामरा में राय अहमद खान खरल शहीद की बरसी के मौके पर मुनक्कदा तकरीब में साबिक कमिश्नर राय वाजिद, डायरेक्टर FBR राय शहजाद, नवाब ऑफ झामरा राय शहरियार कौंसलर राय मोहम्मद इकबाल, राय गुल नवाज, राय सरवर नंबरदार, अमीर जमात इस्लामी पीर मुदस्सिर शाह, जहां सेब न्यासी, चेयरमैन राय हक नवाज, चेयरमैन वाटर बोर्ड राय असफंदियार, साबिक MNA राय गुलाम मुजतबा खरल ने शिरकत की। तकरीब में मेहमानों को तलवारों के तोहफे दिए गए। साबिक कमिश्नर राय वाजिद, साबिक MNA राय गुलाम मुजतबा ने राय अहमद खान शहीद की जिंदगी पर इज़हार ख्याल किया। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल माहीगीरी पंजाब डॉक्टर सिकंदर हयात ने फिश सेड नर्सरी यूनिट मुजियांवाला का दौरा किया और अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज ने डायरेक्टर जनरल को फिश सेड नर्सरी यूनिट मुजियांवाला मंसूबे की तकमील के हवाले से तफसीली आगाह किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सिकंदर हयात ने कहा कि मछली लातादाद खूबियों की वजह से इंसानी सेहत के लिए मौजूद तरीन है, जिसमें बीमारियों से लड़ने की बेपनाह सलाहियत भी मौजूद है। कहा कि आबी हयात की बहाली और बका हमारी अवलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक दरियाओं, झीलों और दूसरे कुदरती पानियों में मछलियों की तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर नोशोनुमा के लिए महकमा फिशरीज पंजाब की जानिब से हंगामी बुनियादों पर बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक मछलियों की ज़्यादा से ज़्यादा अफजाइश के लिए फिश सेड नर्सरीज का क़याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जहां पर बच्चा मछली की स्टॉकिंग से मछली की पैदावार में इजाफा होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशेस आसमा बानो ने कहा कि ज़िले में फिश सेड नर्सरीज में बच्चे की पैदावार बढ़ाने से फ़िश फार्मर्स को गवर्नमेंट रेट्स पर सख्त सेहतमंद बच्चा मछली सप्लाई के लिए दस्तयाब होगा, जिससे न सिर्फ मछली की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि हुकूमती रेवेन्यू में भी खातिर इजाफा होगा। मेराजुल इंसा की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान रवाना किया गया। सामान में रज़ाइयाँ, कंबल, कपड़े, खाने पीने की अशिया शामिल थी। मेराजुल निसा भी दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। मेराजुल निसा के बानी अब्दुल कयूम राना दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहे हैं। सैलाब हो या दीगर कुदरती आफात, उन्होंने हमेशा खिदमत को अवलीन तरजीह दी। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान जिसे रज़ाइयाँ, कंबल, अनसिले और सिले हुए कपड़े, खाने पीने की अशिया समेत दीगर सामान पाक आर्मी के हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिल को सुकून मिलता है। ये सब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। इसमें अहम किरदार मेरे स्टाफ का है जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहता है। मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी डेंगू वायरस के वार जारी। DHQ ज़राए के मुताबिक टोटल 1033 केसेस के अलामती टेस्ट किए गए, जिनमें से 363 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। DHQ में 303 मरीजों को अस्पताल में तिबी इमदाद दी गई, जबकि 334 मरीज शफायाब हो चुके हैं। डेंगू वार्ड में 25 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनको मुकम्मल तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। नासिर अमीन इस वक्त DHQ अस्पताल में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी डेंगू वायरस के वार जारी हैं। इस वक्त मैं हरिपुर DHQ अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन अलामाती जो केसेस टेस्ट किए गए हैं वो 1033 केसेस टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 334 लोग यहाँ से शिफायाब हो चुके हैं। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि तकरीबन 25 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे इलाज भी हैं और उनको अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अकरम खान मौजूद हैं।
उनसे जानते हैं कि ताज़ा तरीन आज की क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अकरम है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ DSU हरीपुर में, और मैं बाकी मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ मिल के डेंगू वार्ड के जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनको भी देख रहे हैं, और डेली की बेसिस पे OPD में भी हम पेशेंट्स ये डील कर रहे हैं। आज भी हमारे पास 25 पेशेंट डेंगू वार्ड में एडमिट हैं, और 9 पेशेंट्स हमारे पास जो है ना वो मेडिकल वार्ड में भी एडमिट हैं। और सूरत हाल इस तरह से है कि पेशेंट्स आ रहे हैं, हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं साथ में। आज हमने 15 पेशेंट डिस्चार्ज किए। हस्पताल इंतज़ामिया का यही कहना है कि एहतियाती तदाबीर पर अपने घरों में अमल करें, और किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में या किसी किस्म का भी तशख़ीस की सूरत में, अलामात की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये वबाई मर्ज़ जो है ये पूरे पाकिस्तान में फैला है, तो कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर के साथ इसको कंट्रोल करें। एक और खबर है मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार सेंटर मैनेजर मंडी बहाउद्दीन नवीद इरफान ने बताया कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इश्तराक से सुबह भर की तरह गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ मंडी बहाउद्दीन में भी बेरोजगार नौजवानों को बावकार रोजगार मुहैया करने की गर्ज से एक रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया। कहा कि पंजाब हुकूमत के इस इदारे से अब तक 35,000 से ज़ायद नौजवान मुस्तफ़ीद होकर 3.5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम कमा चुके हैं। ऐसे तालीम याफ्ता और बेरोज़गार शहरी जो फ्री लाइसेंस के ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं तो वो मुफ्त तरबियत हासिल करने के लिए ई-रोज़गार की वेबसाइट www.erozgar.pib.gov.pk पर रब्ता करें और इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद कहा कि ई-रोज़ प्रोग्राम में दाखिले के लिए कम अज़ कम 16 साल तालीम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जबकि ऑनलाइन टेस्ट पंजाब का डोमिसाइल कौमी शनाख्ती कार्ड और उम्र की हद 35 साल कम और मुआशी हैसियत बेरोज़गार होनी चाहिए। नवीद इरफान ने बताया कि इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के टॉप फ्री लाइसेंस ट्रेनिंग, ई कामर्स, टेक्निकल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, UI/UX डिज़ाइन शोबाजात तलबा के लिए फ्री लाइसेंस का तारफ़ी कोर्स और प्रोफाइल बनाने और आर्डर लेने की ट्रेनिंग होगी और 3 माह की ट्रेनिंग की तकमील पर इंसाद दी जाएंगी। चन्योर से सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बर्क लजपाल एसोसिएशन रजिस्टर के तहत फ़नकारों की फलाह बहबूद के लिए हेड ऑफिस बर्क लजपाल सुपर मार्केट में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से फ़नकारों ने हिस्सा लिया। बानी बर्क लजपाल आसिफ रज़ा आसिफ, चेयरमैन बर्क लजपाल रियाज संचम, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सोनिया अली खान की तरफ से बर्क लजपाल के अहदेदारों और मेम्बरान में कार्ड तकसीम किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी PTI फ़रख हबीब के साथ PTI के सीनियर रहनुमा थे, जिन्होंने फ़नकारों के लिए फ़नकार कॉलोनी के साथ साथ उनकी हेल्थ, बच्चों के तालीम के हवाले से अहम ऐलानात किए। इस मौके पर सोनिया अली खान, सिंगर शहजादी मलिक, आसिफ इकबाल ने बर्क लजपाल एसोसिएशन की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन का इनेकाद किया गया। आज साहिवाल में ग्रैंड अलनूर मार्की को चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल का पोलिंग स्टेशन बनाया गया, जिसमें पोलिंग का अमल जारी और सारी है। इलेक्शन कमीशन टीम के सरबराह शेख मोहम्मद नईम और उनके साथी मेम्बरान का कहना है कि झूठ भी जीतेगा, इसके गले में जीत का हाथ डाला जाएगा और इलेक्शन 2022 साल 2023 का सदर मुकर्रर किया जाए। अपना ग्रुप ने अपने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जबकि मुखालिफ में 2 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपना ग्रुप अपने उम्मीदवारों को जीतने में पूरा जोर लगा रहे हैं। अपनी कंप्लेन की है पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग लाइव मीडिया। और आज जो इलेक्शन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह डेमोक्रेटिक की 100% इलाहाबाद में कामयाबी तो इसलिए लिखी हुई है। और ये इलेक्शन जो होता है इंशाल्लाह ताला क्लीन और क्लियर है, और इंशाल्लाह ताला शाम को 5 बजे आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी ये है कि चैम्बर में बेसिकली ताजरों का रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह राशन हमीद का और फैसल कराम का, हमारे चेयरमैन अजमत साहब, सब दोस्त उनसे हैं, बड़ी कोशिश से, मेहनत से इस चैम्बर की सरपरस्ती कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि चैम्बर जो होता है बड़ी बात है, चैम्बर इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े जो चैम्बर उनमें हासिल हो गए हैं। हमारा 35 लोग जो उनसे इस टाइम राइट है। मेहरबानी। जी, इलेक्शन 2022-23 के हवाले से यहाँ पर आज कॉर्पोरेट
एसोसिएट क्लास की 5 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवारों के दरमियान इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तीसरा इलेक्शन है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग के अलावा किसी दूसरे पैरामिसेस में हो रहा है। तो यहाँ पे बड़ा पुरअमन तरीके से इलेक्शन का अमल जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का जो आगाज़ हुआ था और शाम 5 बजे तक इसका अख्ताम हो जाएगा। उसके बाद गिनती होगी। तो 7 लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं और 5 सीटें पर इंतखाबात होने हैं। तो 5 उम्मीदवारों का इंतखाब शाम गिनती के बाद हो जाएगा कौन विनर हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें मेजर नज़र आ रहा है, यहाँ अपना ग्रुप के 5 उम्मीदवार हैं, 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। तो एक बड़ा पुरअमन तरीके से इलेक्शन का जो सिलसिला है, प्रोसेस है, वो जारी है। यहाँ पिछले 6 सालों से ये जो इलेक्शन है अपना उम्मीदवार है वो तमाम वोटर्स के पास जाते हैं, तमाम के पास जाते हैं और खुद वोट नहीं करते हैं। इसी वजह से जो वोटर्स हैं वो अप्रिशिएट करते हैं जो कैंडिडेट हमारे पास आए हैं तो उसके बाद लीडर्स के पास जाती हैं और यही वजह है कि जो कैंडिडेट आ रहा है आज भी इंशाल्लाह 8 से 50 उकाड़ा के डिग्री कॉलेज में 1857 की जंग आज़ादी के हीरो राय अहमद खरल शहीद की बरसी मुनक्किद की गई। खरल फाउंडेशन पाकिस्तान और सिटी प्रेस क्लब ने मिलकर बरसगीर के हीरो की पुरजोर मनाई और पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि उकाड़ा में किसी एक चौक का नाम राय अहमद खान खरल के नाम पर रखा जाए, जिस पर बरसी पर आए वज़ीर आला पंजाब के मशीर हक नवाज संगला ने वादा किया कि इंशाल्लाह चौक का नाम राय अहमद खान खरल के नाम से रखा जाएगा। बरसी में मेहमान खसूसी राय सदीक एक्साइज इंस्पेक्टर ने शिरकत की। और इधर कामोकी में डिप्टी हेल्थ ऑफिसर की अताई डॉक्टरों को खुली छूट, लाखों रुपए भत्ता वसूल करने लगे। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी में डिप्टी हेल्थ ऑफिसर की खुल्लम खुला गुंडागर्दी, मेडिकल स्टोर अताई डॉक्टरों से अपनी सेट का रोब दिखाकर लाखों रुपए बटोरने का अमल जारी। सियासी डेरे पर बैठकर रकम वसूल की जाती है। अवाम का रद्द-ए-अमल डॉक्टर दानिश की पुष्पनाही PTI के नामवर सियासी जमात करने में मुलव्वस। हालिया दिनों में वहांडू में मौजूद मेडिकल स्टोर्स को सील करने का धौंस दिखाकर लाखों रुपए ले गए। वहांडू मेडिकल स्टोर्स जिनमें उमर मेडिकल स्टोर और हंसरा मेडिकल स्टोर्स शामिल हैं। DHO डॉक्टर दानिश ने रुपए नकदी वसूल करने के लिए एक प्राइवेट शख्स हायर कर रखा है। अवाम का कहना है कि सियासी डेरेदार भी वसूल करने वाली रकम में बराबर का शरीक है। मीडिया ने दानिश डॉक्टर से इस मामले में बात करनी चाहिए तो मौसूफ नाराज हो गए। कामोकी DHO दानिश सदीकी के खिलाफ तमाम मेडिकल स्टोर्स के मालिकान ने एहतजाज की कॉल दे दी। इलाही मलिक पेशावर चैम्बर के सदर मुंतखब हाजी लाल जान सीनियर नायब सदर और सईद अल्लाह नायब को सदर मुकर्रर कर दिया गया। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ जाहिद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के इलेक्शन कमीशन साल 2022 से 2023 का इजलास चेयरमैन इलेक्शन कमीशन हाजी गुलाम अली की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में नए एग्जेक्टिव मेंबरान ने नए अहदेदारान का बिला मुकाबला चुनाव कर लिया। मेंबरान ने सलमान इलाही मलिक के मुकाबले में किसी भी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने पर उन्हें सदर और हाजी लाल जान को सीनियर नायब सदर और सईद अल्लाह को नायब सदर मुंतखब कर लिया। इस मौके पर ग्रुप लीडर ने नौमुंतखब ऑफिस बेरड को मुबारकबाद भी पेश की। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर नवाज पगा शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल हासिलपुर के मॉर्निंग वाइविंग के मोटरसाइकिल, मोटर कार और जीप के बैच नंबर 3 की ट्रेनिंग मुकम्मल। स्टूडेंट्स में अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स तकसीम। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, कम अलमी और उसके अलावा नातजुर्बाकार ड्राइवर्स की वजह से ट्रैफिक हादसात में कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। मोहल्लिक हादसा से बचने के लिए ड्राइविंग स्कूल में बेहतरीन तरबियत और शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही भी फ्राहम की जा रही है। पंजाब के दीगर इजलास की तरह बहावलपुर में भी शहरियों को बेहतरीन तरबियत देने के लिए नवाज पगा शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल हासिलपुर स्कूल का कयाम अमल में लाया गया, जहाँ पर सुबह शाम 2 शिफ्टों में स्टूडेंट्स को मोटरसाइकिल, मोटर कार के अलावा LTV की बेहतरीन तरबियत दी जाती है। इस सिलसिले में 2 हफ्ता मुश्तमिल ट्रेनिंग के मोटरसाइकिल, मोटर कार के दूसरे बैच की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तकरीब का एहतमाम करते हुए अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स दिए गए। ट्रेनिंग के दौरान पहले मरहले में स्टूडेंट्स को पहले स्कूल के ट्रैक, दूसरे मरहले में मसरूफ रोड्स पर पेशावर इंस्ट्रक्टर्स के हमरा ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स में गाड़ी चलाते वक्त एतमाद में इजाफा हो और कोर्स के आखिर में स्टूडेंट्स का तहरीरी और अमली टेस्ट भी लिया जाता है।